हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन बच्चों आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रूविंग यानी हाइट गिवन है, लास्ट में उसके साथ प्रूव करना सीखेंगे। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड, जिस बोर्ड के भी हो, हर एक बोर्ड के लिए ये सब क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वे सब्सक्राइब करना मत भूलो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। चलो क्या क्या है इस वीडियो में तुम्हारे लिए, देखते हैं इसके बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द angles of the depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance of the two stones from the foot of the hill. Now students, it is very interesting question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ ऐसे देखने पर तुमको डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन को समझोगे इट इज गिवन 2 consecutive kilometer stones. Okay, that means suppose you have 2 consecutive kilometer stones are here, that is I have taken a stone like this marked as 0, another is 1. That means the distance between these two kilometer stones is 1 kilometer. And from the top of the hill, the angle of depressions, that means this angle is 30 degree and this is the angle 45 degree. It is given, and here it is ABB, the hill. Okay. Now let us suppose height of the hill is h and BC be the x meter. Then this distance BD equal to x plus 1. 1 is 1 kilometer, that means x plus 1000 meter. You know 1000 meter equal to 1 kilometer. And here this is the alternate interior angle 45 degree, it is 30 degree. First consider the triangle ABC. This is a right angle triangle. Now let us proceed. That is here tan 45 equal to AB by BC. AB is h and BC is x. Then h equal to x meter. Take it equation number 1. Now in a right angle triangle ABD, in ABD here angle is 30 degree, then tan 30 degree equal to AB by AB height and BD is the base, that is we have taken x plus 1000 meter. Then h equal to
x plus 1000 by root 3. It is value of x. Put value of x from equation number 1. Then after putting value of x, the equation becomes root 3 x plus x equal to 1000. Now that implies root 3 x minus x equal to 1000, and taking x common and transposing the constant term, then x equal to 1000 by root 3 minus 1. Here it is not in proper form. Then first of all we have to rationalize, or the rationalize, rationalizing factor is root 3 minus 1. Multiplying numerator and denominator here by root 3 plus 1, it becomes root 3 plus 1 into root 3 minus 1 is 3 minus 1, 2. Cancel this 2 and 1000. You will get 5000 root 3 plus 1, and value of root 3 is, value of root 3 is 1.732, and when you are adding 1, it becomes 2.732. Multiply 500 into 2.732, it becomes 1366 meter. Convert it into kilometer. Since the given value is in kilometer, then BC equal to 1.366 kilometer, distance of the first stone. Now you have to find distance of the second stone, and that is 2.366 kilometer. Then as per the question, the distances of the two stones are required, that is 1.366 kilometer and 2.366 kilometer. Now let us come to another question, that is question number 9. That is a prove that type question. A vertical tower stands on horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is alpha and that of the top of the flagstaff is beta. Prove that the height of the tower is h tan alpha by tan beta minus tan alpha. First of all, draw a suitable figure. Here OP is, suppose, capital H meter high tower surmounted by a flagstaff FP, that is H meter high, and the angle of elevation from point R of the bottom of the flagstaff P is alpha, that is PRO equal to alpha angle, and the angle of elevation of the top of the flagstaff is FRO equal to beta. Now here you have two triangles, two right angle triangles, that is POR and FOR. Then for right angle triangle FOR, the perpendicular, that is FO, equal to small h plus capital H meter, small h plus capital H meter. It is here. Now in right angle triangle POR,
Here is the POR. This is the alpha angle. Now for tan alpha, perpendicular is OP and base is OR. OP by OR, that is tan alpha, is equal to capital H by X, and X equal to capital H by tan alpha. Take it equation number 1. And in right triangle, FOR, this is the angle beta. Tan beta is equal to FO by OR. Tan beta equal to FO is small h plus capital H and OR is X. Then X equal to small h plus capital H by tan beta. It is equation number 2. Now from equation 1 and 2, it is H by tan alpha equal to small h plus capital H by tan beta. By cross multiplication, we will get capital H tan beta equal to small h plus capital H tan alpha. By simplification, we will get H is the capital H, the height of the tower, that is equal to H tan alpha by tan beta minus tan alpha. Hence proved. है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी प्रूफ दैट टाइप हमने लिया है यहाँ पर, एंड इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from 2 points on the ground at a distance of A and B meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root AB meter. Here let us suppose AB with the h meter high tower, it is unknown. We have to find value. We have to prove this h equal to under root AB, and at a distance of A there is a point P, and at a distance of B there is point Q. From point P, angle of elevation of point A is APB equal to alpha and AQB equal to beta. Now in right triangle ABP, tan alpha equal to AB by AB perpendicular base BP, and the values of AB and BP are H and A, then we will get H equal to A tan alpha. Okay, and also it is given कि the angles are complementary. The angles are complementary. Then alpha plus beta equal to 90, and beta you can write in terms of alpha, that is 90 minus alpha. Take it equation number 1. Now in another triangle ABQ, tan beta equal to AB by BQ, and replace this beta by 90 minus alpha, then tan 90 minus alpha equal to H by B. It is from equation 1. Now you know students, tan 90 minus alpha equal to cot alpha. Use that formula, then it is cot alpha equal to H by B, and
You know cot alpha equal to 1 by tan alpha, that is from formula, that is equal to h by b, and from 2 value of tan alpha is known, put value of tan alpha, then that equation becomes a by h equal to h by b, that implies h square equal to ab and h equal to under root ab, hence root. चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसको भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बच्चों काफ़ी इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। दैट इज, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजेंटल. Its foot is pulled away from the wall through a distance a, so that it slides a distance b down from the wall, making an angle beta with the horizontal, so that a by b equal to cos beta minus cos alpha by sin alpha minus sin beta. देखो बच्चों, आपने वो सीढ़ी जरूर देखा होगा, बड़ा सा सीढ़ी लेके तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन पोल पर काम करता है। सपोज पोल के टॉप पर रखा हुआ है, टच कर रहा है, और एक एंड जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड पर अल्फा एंगल बना रहा है। अब वो इलेक्ट्रीशियन जब वो उस लैडर को नीचे उतारना होता है तो उसको नीचे से खींचना शुरू किया। सपोज अगर नीचे से खींचना शुरू करेगा तो बॉटम का एंड जो बी पॉइंट पर था वो अब शिफ्ट होकर डी पर पहुंच सकता है। हाँ, अब आपने देखा होगा कि वो टॉप भी तो नीचे आता है, जब वो लैडर का तो लेंथ फिक्स है, लैडर का लेंथ फिक्स है। अगर उसको ऊपर से नीचे से शिफ्ट किया गया, नीचे अगर तुम्हारा आगे बढ़ा ए मीटर, तो ऊपर से भी उसका अनदर एंड ए से सी पर पहुंचा, जो बी मीटर वो डाउन हो गया, है ना। चलो लिखेंगे कैसे। यहाँ पर तुम्हारा ए बी और सी डी दोनों क्या है, सेम लैडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका लेंथ क्या होगा एल। देन ए ई क्या है, कोई वाल है, ए ई वाल है, एंड ए बी इज द लैडर ऑफ लेंथ एल। On pulling the bottom of the ladder by a meter, the new position of the ladder becomes D on the bottom, and on the top portion, the new position shifts from A to C, and the distance changes is B. तो सपोज ग्राउंड के साथ इनिशियली अल्फा एंगल बना रहा था, दैट इज ए बी ई इक्वल टू अल्फा, एंड फाइनल एंगल क्या है सी डी ई, दैट इज बीटा है। तो अभी हम लोग यहाँ अपने सहूलियत के लिए दो चीज़ सपोज कर लो, बी ई को एक्स एंड ई सी को वाई सपोज कर लेते हैं। देन क्या होगा, ए से ई का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस ये क्या है, दैट इज इक्वल टू बी प्लस वाई, एंड डी ई डिस्टेंस दैट इज ए प्लस एक्स। एंगल बी पर क्या है, ए बी ई इक्वल टू अल्फा, एंगल यहाँ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, बेस एंड हाइपोटेन्यूस पर काम करना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज साइन, देन साइन अल्फा इक्वल टू ए ई बाई ए बी, ए ई है बी प्लस वाई अभी लिख चुके हो, एंड ए बी है एल।
जरा इसको एल के टर्म में लिख ले हम लोग, एल इक्वल टू बी प्लस वाई बाई साइन अल्फा, इक्वेशन 1। कॉस अल्फा दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज बी ई बाई ए बी, बी का वैल्यू है एक्स, ए बी है लैडर का लेंथ एल, देन एल इक्वल टू एक्स बाई कॉस अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब नेक्स्ट इज बीटा, साइन बीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज that is y by l and l equal to y by sin बीटा। नेक्स्ट चलो cos बीटा फाइंड करते हैं। cos बीटा मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है a प्लस एक्स बाई एल, देन l के टर्म में निकालो इसको भी, l को फाइंड करो, l फाइंड करोगे दैट इज a प्लस एक्स बाई cos बीटा, इक्वेशन नंबर 4। चलो अब इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट करें ताकि काम करने में इजी हो। शिफ्ट किया, अब फिगर से ज़रूरत नहीं है तो फिगर को हम हटा देते हैं, इक्वेशन से ज़रूरत है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करोगे तो क्या आएगा, 1 और 3 को यूज़ करो। चलो थोड़ा लाइट कलर ले लें, डार्क में दिखाई नहीं पड़ेगा। देन यहाँ देखो इक्वेशन नंबर ये एल से था और ये 3 देखो वो भी एल एंड साइन से था। देन दोनों को जब लिया तो क्या मिला, दिस, यानी ये क्या है, p प्लस वाई बाई साइन अल्फा, यहाँ के राइट साइड है y बाई साइन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मिलेगा। एंड अब y वाले दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ एंड y को कॉमन लो, y कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू बी साइन बीटा। एंड इसमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को आपने लिया, देन उसको आप लिखोगे बी साइन बीटा बाई वाई। अब साइन बीटा इक्वल टू वाई बाई एल अगर होता है तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर y को क्या बोलोगे, y को बोलोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एस एल साइन, है ना, एल क्या साइन बीटा, एल साइन बीटा, यही बोलोगे ना, एल साइन बीटा। देन अब ये y के जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, तो क्या आया, एल साइन बीटा। चलो साइन बीटा को कैंसिल करो, यहाँ से साइन बीटा को कैंसिल करो, दोनों साइन बीटा को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, बी बाई एल, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू बी बाई एल। ये इक्वेशन नंबर 5, ये आपको भी फिर से काम में आने वाला है। अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 में x बाई कॉस अल्फ़ा एल का वैल्यू है एंड यहाँ पर है l इक्वल टू ए प्लस एक्स बाई कॉस बीटा, इन दोनों को यूज़ करेंगे, l के लिए इक्वेट कर जाएंगे। चलो इक्वेट करके देखते हैं हम लोग का क्या आता है। देन ये क्या आया, इसको सॉल्व जब दोनों को किया देन आया x बाई कॉस अल्फा इक्वल टू ए कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x वाले टर्म को सारे को लेफ्ट साइड ले गया और x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड राइट साइड क्या बचेगा, हाँ ये बचेगा a कॉस अल्फा। दैट इम्प्लाइज अब x को राइट साइड ले जाना चाहेंगे, लेकिन x का वैल्यू हम लोग क्या डालना चाहेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई एल। यही स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको ताकि जो है भूल ना जाओ और ताकि यहाँ से कैंसिल किया जा सके, यहाँ पर से हम लोग का ये दोनों कैंसिल हो सके। जब तक आप ये स्टेप नहीं यूज़ करोगे कैंसिल नहीं होगा। देन बचा क्या, a बाई एल, ठीक है। अब इसका a बाई एल है, यहाँ b बाई एल है। तो ज़रा इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से इक्वेशन 6
इसको डिवाइड करो इक्वेशन 5 से, तो क्या होगा, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर कॉस बीटा वाले के लिए यहाँ क्या बचा था, ए बाई एल ना, यहाँ ए बाई एल बचा हुआ था, और इसको डिवाइड किए किससे, बी बाई एल से, बी बाई एल से इसको डिवाइड किया। चलो, अब इसको डिवाइड किए हो, देन इसको जब इनटू में चेंज करते हो तो क्या लिखते हो, ए बाई एल, ए बाई एल इंटू एल बाई बी, एल बाई बी। कटेगा कुछ, हाँ कटेगा, एल और एल कट गया, बचा क्या, दिस ए बाई बी, हेंस रूट। चलो, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। चलो स्टूडेंट्स, इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम हाजिर होने वाले हैं अगले वीडियो में भी। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कर और कमेंट्स करके बताओ, और जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बाय।